Okay friends, now we can discuss about importance of coordination compounds in analytical chemistry. एनालिटिकल केमिस्ट्री में वो कहाँ पे कैसे यूज़ होता है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं. द फेमिलियर कलर रिएक्शन गिवन बाय मेटल आयंस विद द chelating agents as a result of formation of coordination entities from the basis of their detection and estimation by classical and instrumental method of analysis. So, coordination compound is used for the uh, analytical and qualitative and quantitative analysis. We can use in qualitative and quantitative analytical reactions. Such example of reagent including EDTA, DMG. DMG it means di. EDTA, DMG means dimethyl glyoxime, alpha nitroso beta naphthol, cupron, etc. EDTA is used a complexing agent for analysis of metal ions such as calcium, magnesium, etc. The calcium and magnesium ion for stable complex with EDTA. You have know about the hardness of water. For hardness of water responsible two ions, calcium and magnesium. When we can found estimation of hardness in water, we can titrate with EDTA solution, and when we titrate with EDTA solution, it produce complex compound with calcium and magnesium. It means EDTA react with calcium and magnesium and form a complex compound, and this complex compound is more stable compared to sodium EDTA. When sodium Na2-EDTA is less stable than compare of CaEDTA and MgEDTA. This complex compound is produced when we react with sodium EDTA. The selectively estimation of these ions can be done due to difference in the stability constant of calcium and magnesium complex. Now next importance of coordination compounds is in medicine. मेडिसिन के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज़ होता है. फर्स्ट, द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम caused by the presence of metal in toxic proportion in plant and animal is done by use of chelate therapy. We can in medicine we can use chelate therapy for excess portion of toxic metal in our body, otherwise plant and animal body. For example, excess of copper and iron are removed by chelating agent dipenicillamine and डिसफेरोक्साइम बी वाया फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अगर बॉडी के अंदर कॉपर एंड आयन जो है उसका प्रोपोर्शन बढ़ जाता है तो उसके लिए दो हमारे पास कंपाउंड्स है जो यूज़ फॉर कॉपर के लिए जो यूज़ होता है डी पेनिसिलेमाइन, एंड फॉर आयन के लिए यूज़ होता है डिसफेरोक्साइम बी बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ये क्या करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रिएट होता है, बाद में फिर वो वॉमिटिंग थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है. एंड EDTA इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग. EDTA जो है वो यूज़ होता है लेड का अगर पॉइजन बॉडी के अंदर हो जाता है तो जो डॉक्टर जो है हमें ट्रीटमेंट के थ्रू EDTA देते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और वही EDTA लेड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, बाद में फिर वॉमिटिंग थ्रू वो बाहर निकाला जाता है. एंड सेकेंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ द सिस्प्लेटिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स. ये जो सिस्प्लेटिन एंड उसके रिलेटेड कंपाउंड्स जो है वो इनहिबिट्स करते हैं किसको, ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स लाइक हम कहते हैं ना कि कैंसर हो गया बॉडी में, बराबर. हमारे बॉडी के अंदर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ट्यूमर है. बॉडी के अंदर ट्यूमर जनरेट होता है और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, उसकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो कैंसर के जो लेवल है वो भी बढ़ते जाते हैं. बाद में वो पूरा पॉइजन
क्रिएट कर देता है जो हमारे बॉडी के लिए, ऑर्गन्स के लिए हार्मफुल है। तो उसको रोकने के लिए जो कंपाउंड यूज़ किया जाता है वो है सिस्प्लेटिन और उसके रिगार्डिंग कंपाउंड्स। ओके, नाउ देन सेकेंड इम्पोर्टेंट of Codeines compound in metallurgical process. I hope you can know about the metallurgy. Metallurgy means well we extract the metal in impure form to impure form मीन्स हमको मेटल्स जो चाहिए वो इम्प्योर फॉर्म में से हम प्योरीफिकेशन जो करते हैं उसकी पूरी प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी, जिसमें केमिकल प्रिंसिपल्स, केमिस्ट्री के बेस के ऊपर प्रिंसिपल यूज़ होते हैं जिससे हम इजीली मेटल्स को अलग कर सकते हैं। बराबर, अर्थ क्रस्ट के अंदर से मेटल, प्योर मेटल कैसे निकाल जाते हैं उसके ऊपर पूरी केमिस्ट्री बेस है, उसको हम कहते हैं मेटलर्जिकल process. In metallurgical process, some important extraction process of metal like those of silver and gold make us use in complex formation. Silver and gold. You also this process in your 6th lesson when topic is leaching. In leaching process, we can remove gangue particle from earth crust and extract the मेटल आयंस। मेटल आयंस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसके अंदर से, अर्थ क्रस्ट के अंदर से, और उसके अंदर जो गैंग पार्टिकल है, गैंग पार्टिकल मीन्स जो इम्प्यूरिटी है, जो अनवांटेड है, हमको चाहिए नहीं, उसको जो हम अलग करते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस है उसके लिए उसको हम कहते हैं लीचिंग। और वहाँ पे कॉपर एंड गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है साइनाइड। व्हेन इम्प्योर गोल्ड इज रिएक्ट एंड also silver is react with cyanide, combined with cyanide in the presence of oxygen and water to form coordination entity AuCN twice minus in aqueous solution. Same as silver is produced AgCN twice. Silver is also produced like same AgCN twice minus. In aqueous solution, gold can be separated in metallic form from this solution by the addition of zinc. When we react this compound with zinc जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो सिंपली क्या हो जाता है, तो कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन क्रिएट होता है जिंक CN ट्वाइस एंड अलग होता है Ag, और उसके बाद हम Ag जो है सॉलिडिक फॉर्म में मिलता है उसको अलग किया जाता है। सेम एज गोल्ड सेपरेट इन मेटेलिकल फॉर्म्स। सेकेंड इज इम्पोर्टेंट इन मोंड कार्बोनिल प्रोसेस विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन मेटलर्जी व्हेन एक्सट्रैक्ट ऑफ निकल। Purification of metal can be achieved through formation and subsequent decomposition of their coordination compound. For example, impure nickel is converted to NiCO4 which is decomposed to yield pure nickel. When I can write here in Mond carbonyl process, last on our point, when impure nickel is react with here impure nickel is react with 4 mole of carbonyl CO, 4 mole of carbonyl and produce NiCO4 type of ligand, and it's decomposed with presence of high temperature and pressure. It decompose and form Ni plus 4 mole of carbon. It is in gaseous form, it is solid form, but it's pure. We can use this method in purification of nickel, and this is solid but impure. Okay, now you can now understand how to use this is process is called Mond carbonyl process. Mond carbonyl process, purification of nickel. Okay, now next
द इम्पोर्टेंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन फोटोग्राफी. हाँ, you know about the photography. Now in technology is more developed, we can click a photo and save in our memory card, अदरवाइज पेन ड्राइव. जो अब हम फोटोग्राफी करते हैं वो मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव के अंदर उसको सेव कर लेते हैं और डायरेक्ट प्रिंटर के अंदर डाल देते हैं, तो उसकी फ़ोटो कॉपी हमको मिल जाती है. लेकिन अगर आप 10-15 साल पीछे की बात करो, बराबर 10-15 साल पहले की बात करो, तो एक रील आती थी ब्लैक कलर जो कैमरे में रखी जाती है. आई होप आपने टीवी के अंदर अभी देखी होगी या फिर रियल लाइफ में देखा तो ज़्यादा अच्छा है. तो वो जो रील रहती है पूरी नेगेटिव रोल जो इसको हम कहते हैं वो ब्लैक कलर की रहती है. वो एक्चुअली जो बनी रहती है AGBR से. और अगर आपने कभी डिस्कवरी के ऊपर या फिर मूवी में कहीं पे देखा होगा तो उसको अगर सनलाइट में निकाल दिए तो वो ख़राब हो जाती है, बराबर. और जो भी कैमरामैन है उसकी फ़ोटो खींचता है तो बाद में उसको पेज के ऊपर अगर उसको डेवलप करना है तो एक डार्क रूम के अंदर वो उसको डेवलप करता है, बराबर. और डार्क रूम के अंदर आपने देखा होगा कि एक लिक्विड के अंदर उसको पेपर के साथ वो लिक्विड के अंदर डालता है और फिर वो पेपर के ऊपर पूरा जो फ़ोटो है वो आ जाता है, बराबर. तो जो वो लिक्विड यूज़ होता है वो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बराबर. तो फोटोग्राफी के अंदर कहाँ पे यूज़ होता है तो वो हम देखते हैं कि इन फोटोग्राफी, इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, द डेवलप्ड फिल्म इज़ फिक्स्ड बाय वॉशिंग विथ हाइपो सॉल्यूशन विच डिसॉल्व द अनडिकम्पोज AGBR जो हमारा रील के अंदर जो रहता है, फोटोग्राफी की जो रोल हम रहते हैं ब्लैक एंड वाइट उसके अंदर रहता है, ब्लैक कलर का जो रहता है वो AGBR से बना रहता है. और फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स AgH2O3 ट्वाइस 3- मीन्स जो सॉल्यूशन के अंदर वो हाइपो सॉल्यूशन जो रहता है वो हाइपो सॉल्यूशन के अंदर वो उसको डालता है, जिसकी वजह से उसके बीच में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रिएट होता है और एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है AgH2O3 ट्वाइस 3-. यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्वेश्चन ये आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फोटोग्राफी के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है, विच कंपाउंड इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी. तो यू कैन आंसर दिस AgH2O3 ट्वाइस 3-. दिस इज द आंसर in complex compound. Okay, now we can importance in biological system. In our body, in plants, there are also present a complex compound. Let's see which complex compound is present and which type of metal ion are present in plants and human body. द ग्रीन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस. आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है तो कि क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम. वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो कि मैग्नीशियम. उसके अंदर जो मेटल आयन है वो कौन सा है तो मैग्नीशियम है. ओके, नाउ अदर इज हीमोग्लोबिन. हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन रहता है वो हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल. रेड पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर. हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र वो करता है हीमोग्लोबिन. अगर आपको पता होगा बायोलॉजी में अगर आपने पढ़ा होगा तो जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जाता है वो ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रिएट करता है. और वो फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे हर एक टिश्यू के अंदर, हर एक बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर जाता है और जैसे जैसे प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज़ होता है तो वो फिर अलग हो जाता है, बराबर. तो वो किसके लिए है आयन. मीन्स किसका मेटल, उसके अंदर मेटल आयन कौन सा है आयरन है उसके अंदर Fe. नेक्स्ट विटामिन B12. ज़्यादातर ये जो विटामिन B12 है इसकी टैबलेट्स लेनी पड़ती है क्योंकि बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है. तो विटामिन B12 भी एक्चुअली बना किससे है तो बना है साइनो कोबाल्ट एमाइन. यू कैन सी द नेम एंड गिव द आंसर ऑफ मेटल आयन. साइनो कोबाल्ट एमाइन. कोबाल्ट it means cobalt is present in as a metal ion and cyanide and amine are a ligand. The antiprecious anemia factor is a coordination compound of cobalt. Next, carboxypeptidase. Carboxypeptidase A and carbonic anhydrase catalyst of biological system are मेटालोएंजाइम्स ऑफ जिंक. जो कार्बोक्सीपेप्टिडेस एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस है उसके अंदर मेटल आयन कौन सा है तो कि जिंक है.
जिसकी वजह से वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रोड्यूस करता है. नाउ लास्ट इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस. इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस. Coordination compounds are used catalyst for many industrial process. First and main important is Wilkinson rhodium complex, which is used in Wilkinson catalyst is used for hydrogenation of alkenes. alkenes की जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन रहती है उसके लिए कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है PH3P thrice RHCl रोहोडियम complex, जिसको कहा जाता है रोहोडियम कॉम्प्लेक्स. हियर कैटालिस्ट इज रोहोडियम. मेटालाइन इज रोहोडियम जो यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ आल्किन. आल्किन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करने के लिए जो कैटालिस्ट यूज़ होता है जिसको कहा जाता है विल्किंसन. एक बार बोर्ड की एग्ज़ाम गुजरात बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज़ द विल्किंसन कैटालिस्ट. अदर देन आंसर इज रोहोडियम कॉम्प्लेक्स. फॉर्मूला था PH3P thrice RHCl. Okay, I hope now you can understanding complex compound. Next is electroplating. Articles can be electroplated with silver and gold much more smoothly and evenly from solution of the complexes. अगर किसी का हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो उसके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहती है उसकी प्रेजेंस में वो ज़्यादा स्मूथली हो जाता है और अच्छी तरह से वो हो पाता है. जैसे कि अगर गोल्ड एंड सिल्वर का करना है तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो रहता है AgCN twice minus and AuCN twice minus. Then from the solution of silver metal ions. Okay, now if you can understand of this importance of coordination compound, if you have now understand, then give like, and if any doubts then you can also comment in comment box. Thank you friends.